वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस बाय अनुज मलिक। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो फर्स्ट we will discuss about observation of chemical reaction. So first observation is that change in color. In some reaction you observe the change in the color. When you mix the two solution, before mixing the two solution, suppose there is the one test tube that contain the aqueous solutions and second test tube that also contain the aqueous solution of any compound. If you mix the two compounds, then formation of the product, and that is the color forms. So before mixing, that is the colorless, and after mixing, that is the colored substance form. So that means change in the color. Simple displacement and double displacement reactions mostly change in the color. So we do activity in further. So first observation is that the change in the color. Second observation is change in state. State means the physical state, solid, liquid and gas. So change in the state also in the product side. And the third is change in temperature. Change in temperature. Before chemical reactions and after formation of the product, there is a change in the temperature. For example, if you take the zinc metal in the dilute HCl, so what do you observe? The beaker become hot. इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप जिंक मेटल को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करोगे तो मेटल उसके साथ रिएक्ट करेगी, साल्ट की फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा। पहले बीकर क्या है? ठंडा है, उसके बाद में क्या होगा? बीकर गर्म हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगी। तो ऑब्जर्वेशन से हम चेक करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन का मतलब है वहाँ से निकलना। इवोल्यूशन ऑफ गैस की ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोई गैस निकलेगी वहाँ से। यदि इन ऑब्जर्वेशनों में से कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व होती है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है। केमिकल रिएक्शन इज गोइंग ऑन। Clear? So that are the observation of the chemical reactions. Now we will discuss about chemical reaction statement. Chemical reactions statement. Chemical reaction statement. For example, the first reactions. Magnesium ribbon. Magnesium ribbon burns in presence of oxygen to give magnesium oxide. That is the observations. Magnesium oxides, that is the products. Magnesium ribbon burn in the presence of oxygen to give magnesium oxides. That means chemical statements. So now how to write the word equations? Word equations. So that is the simple statement. The magnesium ribbon burn in the presence of the oxygen to give the magnesium oxides.
So how to write the word equation? Word equation means represent the chemical reaction, represent the chemical reaction in form of word. वर्ड के फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना वर्ड इक्वेशन कहलाएगा, मतलब शब्द में लिखना। सबसे पहले आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट। मैं आपको बता देता हूँ, टू गिव से पहले यहाँ पर आपको टू गिव मिलेगा लिखा हुआ या टू फॉर्म मिलेगा। सो टू गिव से पहले जो है वो रिएक्टेंट होगा और टू गिव के बाद में जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ से देखिए, मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम का एक टुकड़ा वो बर्न हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो हेयर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट बिकॉज ये टू गिव से पहले है और टू गिव के बाद जो में है दैट इज़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। जब हम दो रिएक्टेंट को आपस में लिखते हैं तो बीच में प्लस का साइन आता है और रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। और नेक्स्ट आता है एरो का साइन, ये एरो से पहले दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर एरो दैट आर द प्रोडक्ट, दैट इज द मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। सो दैट इज द प्रोडक्ट को हम ऑलवेज राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे। सो दैट इज द वर्ड इक्वेशन सिंपली, that is the statement, that is the word equations. So represent the chemical reaction in the form of the word, that is known as the word equation. So before arrow there are the reactant and after the arrow there is the product. If the two or more reactant are given, how to write? We write plus sign between them and before arrow that are the reactant and after arrow that is the product. That is the most important point for you. अनदर जो आइडेंटिफिकेशन है कि कुछ बच्चों को पहचान में नहीं आता कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको उठाता हूँ यहाँ से कि टू गिव को देख लो आप, टू फॉर्म को देख लो। तो यहाँ इससे पहले जो आपको मिलेगा वो रिएक्टेंट होंगे, इसके बाद में जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट इज़ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट द वर्ड इक्वेशन टू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशन मीन्स रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन in form of their symbol and their formula, in their symbol and their formula। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल और उसके फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर है। जैसे इसी वर्ड इक्वेशन को हम सिंपल केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल दैट इज़ द मैग्नीशियम। सो द सिंबल ऑफ द मैग्नीशियम इज Mg प्लस ऑक्सीजन। फॉर्मूला ऑफ द ऑक्सीजन इज दैट इज द O2। साइन ऑफ द एरो एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। So that is the chemical equations. But now the chemical equation represent in the form of their physical state also of the reactant and the product. So we use the notations. We use the notations for the physical state.
physical state for reactants, for reactant and product. So here magnesium physical state, that is the S. Magnesium present in the form of solid state, and here oxygen state is gas, so we represent that is the Z. And here magnesium oxide, that is white powder, that is the solid form. So that are the physical notations, that is the physical state. Physical state, that is the S means solid, Z means gas, S means further solids. तो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फिजिकल नोटेशन का बहुत ध्यान रखना है। और वो जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मैं अलग से आपको लिख के दिखा देता हूँ। S फॉर द सॉलिड, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, Z for gas, and AQ. AQ means aqueous. Those solutions which are prepared in the water, so we use the term that is the aqueous. Now another example of chemical reactions. Second example, hydrogen gas react with oxygen gas to form water. That is the statement. Hydrogen gas react with oxygen gas to form water. That is the simple statements. So how to represent it in the form of the word? So we write word equations. Firstly we write the word equation. So in this chemical reaction, that is the two, that is the form. So before the two form, that are the reactants. टू फॉर्म से पहले मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट्स होगा. सो हेयर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस. So hydrogen gas and the oxygen gas are the two reactant, and two form. After the two form, that is the formation of the water. So water is the product here. So word equation means represent the chemical reaction in the form of their word. So that is known as the word equations. उसको शब्द की फॉर्म में लिखना. तो हाइड्रोजन गैस, that is the hydrogen. Simply you can say that is the hydrogen, plus here is the oxygen, that is formation of water. So water here the product, and hydrogen and oxygen here the reactants. These are the reactants. So that is the word equation again. There is a second example. The hydrogen gas react with the oxygen gas to form the water. So how to represent this chemical reaction in the form of the word? So firstly you choose which are the reactant and which are the products. So as you know, before the two form that are the reactant, and after the two form that is the product. So मैंने यहाँ पर सेपरेट कर लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. तो ये आपको एरो दिखाई दे रहा है. ये इस एरो से पहले रिएक्टेंट्स होंगे और एरो के बाद में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा. और ख़ास बात यह होगी कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी और जो प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट्स होंगी. तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि एक नया सब्सटेंस बनेगा न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ. इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स क्या हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है ये कंबस्टाइबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन की हेल्प से ये जलेगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वाटर वो फायर एक्सटिंग्विशर होगा जो उसी आग को बुझा देगा.
तो हाइड्रोजन इज़ द कंबस्टाइबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन जो है उसको सपोर्ट करेगी बर्न करने में, और वाटर की वो फॉर्मेशन देगा। ठीक है, 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसका यूज़ है। एस्ट्रोनॉट जो हैं इसका यूज़ करते हैं वाटर की प्रिपरेशन में, और वहाँ पर इस सेल का नाम है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है, उसका नाम है फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल, in the 12th class electrochemistry chapters. So how to write this word equation in chemical equation form? So the formula of the hydrogen is H2, oxygen O2, that is the molecule of hydrogen, that is the molecule of the oxygen, and H2 plus O2, that is the formation of H2O. सो केमिकल रिएक्शन को, एक केमिकल इक्वेशन को और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी फिजिकल स्टेट को लिखना चाहेंगे। और हर एक बच्चे को ये बड़े अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, और ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो उसकी किस नोटेशन से आप उसको रिप्रेजेंट करोगे हर एक बच्चे को बड़े अच्छे से पता होता है। ये एक बार फिर मैं भी बता दूं आपको कि हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। ऑक्सीजन को भी हम यहाँ पर स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, बिकॉज 2 आर द गैसेस एंड 2 आर द रिएक्टेंट्स। एंड हेयर H2O इज द वाटर, दैट इज द लिक्विड्स। सो इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट से वर्ड इक्वेशन बना सकते हो, और वर्ड इक्वेशन से आप एक केमिकल इक्वेशन को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस to form ammonia. So as you know how to represent the word equation, आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप वर्ड इक्वेशन को लिखोगे। वही बात फिर से कि टू फॉर्म से पहले, बिफोर द टू फॉर्म, दैट इज द नाइट्रोजन गैस and the hydrogen gas, that are the reactants, and after the two forms, two form के बाद, that is the ammonia, that is the product. So word equations, so nitrogen plus hydrogen, that is the ammonia, So here nitrogen and hydrogen, that are the reactants. और रिएक्टेंट जब आप लिखोगे तो प्लस साइन बिटवीन लिखोगे, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट होंगे बीच में एरो का साइन होगा, एरो के साइन से पहले रिएक्टेंट्स होंगे, एरो के साइन के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सो दीज आर द रिएक्टेंट बिफोर द एरो and this is the product after the arrow. So nitrogen and hydrogen both are the gases, and ammonia is also a gases. So write down the chemical equations. अब हर एक बच्चे को ये पता चल जाएगा कि एक वर्ड इक्वेशन में और केमिकल इक्वेशन में क्या फ़र्क है, सिर्फ लिखने का फ़र्क है। वर्ड इक्वेशन को हम वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम उसके सिंबल और फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो केमिकल इक्वेशन को अब हम कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन को हम लिखेंगे N2, दैट इज़ द फिजिकल नोटेशन, दैट इज़ द Z, बिकॉज दैट इज़ द नाइट्रोजन गैस। और बच्चों को पता होता है ये कि नाइट्रोजन गैस एंटीऑक्सीडेंट गैस है एक तरीके से। जो आप चिप्स खाते हो, कुरकुरे, चिप्स, ठीक है, इनके अंदर एक गैस भरी होती है
ताकि वो उन चिप्स को, उस कुरकुरे को ख़राब होने से बचाती है, ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। वो नाइट्रोजन गैस ही होती है जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करती है। प्लस हाइड्रोजन H2, दैट इज़ द Z, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस and formation of ammonia, that is NH3, that is also G, that means ammonia is also a gas. So इस तरीके से आप एक केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में बना सकते हो और एक वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्टिविटी, aim to study the reaction of magnesium and oxygen. That is the first activity. In the 10th class, activity are the most important for the final exam. एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो मैं आपको 11 की 11 एक्टिविटी बड़ी फुल डिटेल से करवाने वाला हूँ। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1, टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, दैट इज़ द एम। क्लियर? नाउ द प्रोसीजर, how can you proceed this activity, that is the procedures. So first step, clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long. Clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by rubbing it with sandpaper. The question arises that why we rubbed it with the sandpaper? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बना लेती है इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से वो बर्न होने में ज़्यादा देर लगाएगी, तो आसानी से वो बर्न हो, क्लियर, रिएक्शन अच्छे से वो दे, तो उस लेयर को हम रब करके वहाँ से हटाएंगे। क्लियर? सेकेंड प्रोसीजर इज दैट होल्ड it with a pair of tongs की सहायता से हम उसको पकड़ेंगे और उसको बर्न करेंगे एंड बर्न इट, और उसको हम बर्न करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द मेन क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन? दैट इज द मोस्ट important points. Clear? But observation is that if you burn the magnesium ribbon with the oxygen, so it gives the white dazzling flame and leaves residue as a white powders. That name is the magnesium oxides. So now write the observations. So during the activity, observation are the most important, that reaction is going on or not. जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन का एक अहम रोल होता है। ऑब्जर्वेशन ही हमें ये बताती है कि वो केमिकल रिएक्शन किस टाइप की है, कैसे है, क्या उसके अंदर ऑब्जर्वेशन आई है, ठीक है, क्या उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। तो हर एक चीज़ हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलती है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या आई? फर्स्टली वाइट डैजलिंग फ्लेम, बिल्कुल शाइनिंग, डैजलिंग मतलब शाइनिंग, बिल्कुल चमकदार,
जैसे आप एक डार्क रूम में करोगे तो बिल्कुल वो चमक जाएगा कमरा, वो बिल्कुल शाइनिंग हो जाएगा। सेकंड, वाइट पाउडर, आपको वाइट पाउडर मिलेगा जलने के बाद, और जो ये वाइट पाउडर होगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, MgO, दैट इज़ द वाइट पाउडर। दैट आर द ऑब्जर्वेशंस। नाउ कंक्लूजन्स, बाद में हम क्या निकालते हैं उसका कंक्लूजन्स, ठीक है, कि बाय स्टडिंग दिस एक्टिविटी व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू कंक्लूड, वी कंक्लूड दैट मैग्नीशियम रिबन, conclude that magnesium ribbon react with oxygen present in air to form a white powder of magnesium oxide, that is the conclusions. So that is the first activity, कि what happen when the magnesium ribbon burn with oxygen. Clear? So main point are the observation, main point are the conclusion, and write the chemical equation also, that is the magnesium, that is in solid form, plus O2, that is the gaseous form. Now the product is MgO, that is the solid, that is the white powder. That name of the MgO is magnesium oxide. O2 is oxygen, Mg is magnesium. So magnesium, oxygen, these are the reactants again, and that is the product which are written in right hand sides. होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो एक्टिविटी नंबर 2 and 3, observations, conclusions, that are the most important, activity number 2 and activity number 3 जल्दी ही आएगी।